Welcome back. Today, the topic which we are going to start it report writing. If we look into the writing skills, short composition में आपके invitation replies है, then you have notices, then you have the letters and article. Last but not the least is report writing. First of all of your writing skills comprises of the same, that is 5 marker. But if I talk about the way report writing is written, it is quite different from what you do in your other skills. यानी कि जब आप रिपोर्ट राइटिंग को सीख रहे हो, यू मस्ट बी थरो. आपको बहुत ज्यादा थरो रहना चाहिए, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग एनालाइजेस योर राइटिंग स्किल. यानी कि वो राइटिंग स्किल नहीं जो आपका है. दैट मीन्स the language that you are using, the content, the vocabulary, what you are going to use. You cannot use a rough and tough, a general vocabulary. There are certain words which you need to use in this. तो जब हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं, या इफ आई से कि यस, मतलब कि a good report writing, max to max you will be getting 3 marks at the very beginning. बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग आपका थोड़ा सा, जब तक आप उस पर अपना दिमाग नहीं लगाओगे, इट विल डेफिनेटली बी टफ फॉर यू. मतलब इट इज नॉट, इफ आई से इन अ जनरल टर्म, रिपोर्ट राइटिंग इज नॉट द कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. तो यू मस्ट इंश्योर कि आप जो हो सही वर्ड, सही लैंग्वेज, सही कंटेंट यूज करते. दो इट इज ओनली ऑफ 5 marks, but of course आपका जो word limit है, that is 100 to 120 words only. That is article and report, both are of the same length. Now let us come to the content, or what you call as the concept. सबसे पहले तो report हमारे जो है, we have 2 kinds of reports. And in your exam you can expect anything. ऐसा नहीं होता है कि मैम कौन से वाला ज्यादा आता है, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि ये वाला ज्यादा आएगा. समटाइम्स इट हैज बीन ऑपोजिट, एक बार ये एक बार वो. आर्टिकल एंड रिपोर्ट के अंदर नॉर्मली देयर इज अ चॉइस, सो वी डोंट नो वेदर इट वुड बी दिस वन और दैट वन. फर्स्ट इज अ report which we write for the magazines. Now what is magazines? आपके स्कूल के अंदर आपका स्कूल न्यूज लेटर आता है. Maybe your school is having its own periodical, like in our school we used to have. तो उस periodical के अंदर, आप अपने magazine के अंदर, आप अपने न्यूज लेटर के अंदर, मतलब these are the words which normally comes as a question. Write a report for your school newsletter. अगर स्कूल लिखा है, न्यूज लेटर लिखा, तो वो स्कूल मैगजीन है. तो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज अ प्रॉपर न्यूज़पेपर. जो नेक्स्ट हमारा आता है, दैट इज अ प्रॉपर न्यूज़पेपर. तो यू हैव वन report which is normally written for the school magazines, school newsletters, मतलब आपका स्कूल से रिलेटेड. द क्वेश्चंस, or what kind of questions or what kind of content we write for the school magazine is mostly it is related to school और इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब स्कूल रिलेटेड ही मोस्टली होता. whereas for a magazine, for a newspaper, it can be anything related to your schools. It can be related to any kind of news that is there. Means that can be a tragedy, that can be a general inauguration, it can be any
पॉलिटिकल न्यूज, एनीथिंग इट कैन बी देयर, मतलब सब कुछ जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो. In another word, in a simple form, everything that you read in a newspaper, जब आप न्यूज़पेपर को खोलते हो तो उसमें लिखा हुआ होता है कि आज इतने लोग मारे गए, आज ऐसा हो गया. Everything that is all newspaper. Whereas in the magazine, we normally have the school related news only. तो पहला तो आपका जो फर्स्ट मतलब कि जो पड़ाव है वो ये है, यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो व्हेन यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, so in the question, it is normally, it would be given, write a report for the school magazine, write a report for the newspaper, and that would be counted for your marks. कंटेंट में जो लैंग्वेज है उसके अंदर फर्क नहीं आता है, लेकिन ऑफ कोर्स द फॉर्मेट में फर्क आएगा. फॉर्मेट इज कंप्लीटली डिफरेंट. मैगजीन का अलग है और न्यूज़पेपर का अलग है. मैगजीन इज सिंपल, न्यूज़पेपर इज बिट डिफरेंट. बाकी कंटेंट वही रहता है. व्हाट इज द कंटेंट नाउ? कंटेंट इज, if you are able to memorize it कि मैम ने क्या लिखा है, तो आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट कभी गलत नहीं होगा. बस आपको थोड़ा सा पॉलिश करना, अपने आप को वर्ड्स को यूज करना आना चाहिए बस. द कंटेंट इज व्हाट हैपेंड, when it happened, where it happened, who and how. यही हमारे पूरे न्यूज़पेपर का आंसर है, सॉरी रिपोर्ट का आंसर है. जो भी रिपोर्ट होगा उसमें व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड, हु इट वाज देयर एंड हाउ इट हैपेंड. सो एनीथिंग जो भी होगा, चाहे आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हो, चाहे आप उसको मैगजीन के लिए लिख रहे हो, आपका यही रहेगा. यानी कि आपको जो लर्न करना है वो यही है कि आपको हमेशा याद होना चाहिए. मतलब आपने एक क्वेश्चन, अब आपको तो नहीं पता ना रॉबरी कैसे होती है, आप यू आर नॉट इन्वॉल्व. आपको तो नहीं पता ना कि एक्सीडेंट हुआ था तो क्या हुआ था, आपको तो नहीं पता, राइट? बट if you remember these keywords, what happened, accident हुआ था, when it happened हमेशा न्यूज़पेपर में एक दिन पहले, where it happened most of the time it is given in the question, then क्या क्या हुआ था एक्सीडेंट में, थोड़ा सा हमें अपना we have to use our brain and put it बस. तो that is in one another way न्यू मतलब कि रिपोर्ट, that is आपका रिपोर्ट. Now let us turn it to the proper, हमारा जो है whatever we have done, हमें अपने मैगजीन में कैसे लिखनी है, the format. We would start only with the magazine report. Just like article, title, headlines, आप उसको जो भी बोलो, टाइटल बोलो या हेडलाइन बोलो, and who is writing it. अगर आपके न्यूज़पेपर के मतलब आपके उसमें क्वेश्चन के अंदर दिया है बाय नेम, दिया है क्लास, दिया है या ये लिखा है हेड गर्ल, हेड बॉय और स्टूडेंट एडिटर, एवरीथिंग शुड कम ओवर. आर्टिकल के अंदर व्हेन आई वाज डूइंग, आई टोल्ड यू दैट इन द स्कूल आर्टिकल्स हम लोग नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता है. हेयर इट इज स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस कि आप यहाँ पर जो लिख रहे हो वही आपका, इट विल बी स्ट्रिक्टली इन दैट वे ओनली. मतलब यहीं पर आपको लिखना है जस्ट आफ्टर द टाइटल.
वी डोंट पुट एनीथिंग एक्स्ट्रा, हमारा कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं होता है. वी हैव टू बी कन्फाइंड टू द लैंग्वेज. और हमारा जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल, उसमें कोई भी हम लोगों को मसाला ऐड नहीं करना है, बट इट शुड बी एलॉबरेटेड इन अ प्रॉपर मैनर. और ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, व्हाट, व्हेन, वेयर, यही हमारा जो है, दिस इज एक्चुअली द क्वेश्चन. मतलब आपको अपने दिमाग में रखना है, स्कूल में क्या हुआ था, एनुअल फंक्शन हुआ था, कब हुआ था, संडे को हुआ था, कहाँ हुआ था, स्कूल के ऑडिटोरियम में हुआ था, कौन उसके अंदर आया था, उसके अंदर क्या क्या हुआ था, मतलब कि डांस हुआ था, ड्रामा हुआ था, स्किट हुआ था, एवरीथिंग इज देयर. बस, दिस इज द स्कूल रिपोर्ट. नाउ, report writing is written in the past tense. Why? Because report is what has already been or which has already happened. जो हो चुका है, जो हो चुका है. तो therefore the reports are written in past tense. Right? मतलब what happened, what happens नहीं है, what happened. एंड पास्ट टेंस का मतलब सिंपल पास्ट भी होगा, पास्ट परफेक्ट भी होगा. इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेल माई चिल्ड्रन टू डिवाइड इट इनटू पैराग्राफ. और मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि बच्चे उसको डिवाइड करते हैं. अच्छा लगता है अगर वो प्रॉपरली, मतलब कि अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज होते हैं. ना, अच्छे अच्छे वर्ड्स का मतलब क्या है? इज इट वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स? नो. Will not be using a simple word, but we would try to use a synonyms which looks better. Like, अभी हम करेंगे तो you'll understand. So it is written in past tense. And next, what I have written is past tense, passive voice preferable. What is the meaning of preferable? मतलब कभी कभी तो हमारे सेंटेंस ऐसे सिंपल भी हो सकता है. जैसे आपने, अगर आप न्यूज़पेपर, सॉरी, न्यूज देखते हो, न्यूज वाले क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आप? डू दे गिव यू इन अ सिंपल लैंग्वेज? कभी देखा है? आज मतलब वॉच करते हो तो हाउ डू दे से? फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक सिंपल सा सेंटेंस है. राइट? दिस अ सेंटेंस, स्कूटर हिट अ मैन. स्कूटर ने एक इंसान को धक्का दिया. राइट? क्लास 12. अब ये सुनने में बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है. आप क्या बोलोगे? यार ये तो हमारे घर के सामने रोज होता है. इट्स, दिस एरिया इज वेरी फेमस फॉर दिस. यहाँ तो रोज ही हम पिटते हैं. मतलब दिमाग में वही आता है, ये तो होता रहता है. अब न्यूज़पेपर वाले उसको कैसे बोलते हैं, थोड़ा सोच के देखो. आइए हम आपको लेकर चलते हैं उस आदमी के पास जिसको एक स्कूटर ने मारा. एंड इमीडिएटली आपको लगता है, ओ माय गॉड, अ मैन हैज बीन हिट. ओ माय गॉड, अ मैन हैज बीन हिट. अगर मैं इसको लिख रही हूं, अ मैन वॉज हिट बाय अ स्कूटर, तो सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? बिकॉज इट इज एम्फसाइजिंग दैट अ मैन हैज बीन इंजर्ड. और इसीलिए we use the passive sense. If you have ever watched the news, they would take you in this sense only. They would not say उनके द्वारा कहा गया. Why do they use this? Because that gives a better impact. So we try to produce our thoughts in the report with a passive voice. Right?
तो और ये दोनों के लिए सेम है, whether you are writing for a magazine or you are writing for the newspaper, it would be the same. That is what, when, where, how, who, written in past tense, written preferably in the passive voice. When we start for the magazine, it's a headline and byline. This is the format, simple format. Now, let us understand this through a question in a better manner, which will help you to exactly understand. 2024 question is this. Your school organized Y20 चौपाल अंडर द G20, मतलब जैसे G20 होता वैसे आपका ग्रुप ऑफ 20 schools चौपाल. The theme chosen was health and wellness. Nearly 20 speakers from class 9 to 12 came in this and presented their ideas. Now, as the student editor, now it is given student editor, you have to write the report. So let us start. Look at the screen for 1 minute. What has been written? And let us understand. The beginning line is just an introduction. So that is why it is in a normal tense, that the school is always ahead in fostering the community wellness. The question is about overall health. So taking the same, मतलब जो ऊपर दिया है उसी के according, the school organized a Y20 Chaupal under the initiative of G20. It is already given in the question paper. That is in the question. So we have included everything. The event अब कब हुआ था was hosted on Wednesday. I've just taken today's date in the school auditorium, यानी कि when, where. फिर if it has been presided over, so who presided, ये मैंने randomly name लिया है. There is nothing like that. Just yoga guru इसमें ऐसे डाल दिया है. Then who welcomed that person? School के principal. The event focused on a holistic development, that is physical, emotional and मतलब सारे के सारे मिलाकर. और फिर उन्होंने बताया, उन्होंने अपना एक्सपर्टीज इसमें शेयर किया. You can also write that he shared about how yoga helps. Then फिर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है that 20 speakers had presented their ideas. तो अब हमें वही चीज को यहाँ पर करना है. तो सबसे पहले क्या हुआ था, क्लास 12 फर्स्ट ऑफ ऑल वाज व्हाट, देन व्हेन, वेयर, एंड देन हु, एंड देन हाउ. The questions answers are given here. अब how क्या क्या हुआ था. The 20 speakers जो हैं they had participated, they had given their presentations. Now एक ये हमने ऐड कर दिया. This is where we are adding our content. ये हमारी creativity है. तो वैसे ही एक random name ले लिया that Rashi has emphasized on the revival of the alternative medicines, the old age therapies. और उसके बाद एक और बच्चे का नाम ले लिया जिसने सोशल इंटरैक्शन को भी बोला है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग यू आर healthy if you are physically, mentally, emotionally, intellectually and socially fit. WHO जो है ना वो यही देता है. तो वही चीज को हमने यहाँ ऐड कर दिया है. All the students, now I have used this, you can see I have used this synonym. Showcased मतलब exhibited, मतलब showcase का मतलब क्या होता है, exhibited. Presented मतलब आप कोई भी वर्ड लिख सकते हो, उसकी जगह पे I have used a word showcase. All the students showcase their talents using multimedia, मतलब अलग अलग तरीकों से. The initiative was, अब यहाँ पर मैंने praise की जगह applauded, lauded, मतलब we can use the, we need to use these words. Applauded,
लॉडेड, कोई भी फंक्शन होता है उसकी तारीफ होती है, अप्रिशिएटेड। कभी कभी हम बोलते हैं दैट पर्टिकुलर सॉन्ग रिसीव्ड अ स्टैंडिंग ओवेशन। फिर द पार्ट टेकर्स, मैंने पार्टिसिपेंट्स को जो है एक और नाम दे दिया है, सिनोनिम दे दिया है, पार्ट टेकर्स वर फेलिसिटेटेड, यानी कि उनको अवार्ड मिला था with a certificate of merit for their efforts. The program concluded with an oath to maintain the holistic approach and vote of thanks by the students, sorry, by the school's head girl. So this is what we call as a report which we write for the school magazine. Means it is a part, it is a kind of way you have to write it. Anything which is related to a student might, आपके स्कूल के अंदर क्या क्या हो सकता है, अंदाजा लगाओ. Your school may be having a function, annual function, right? Then second is sports day. थर्ड इज एनी, जैसे ये हमने किया है G20, मतलब ऐसा कोई चौपाल, एनी स्टूडेंट्स वर्कशॉप. फिर एक और क्वेश्चन आया था जो एग्जाम में आया है, वो है योर स्कूल हैड अ काउंसलिंग सेशन, जिसके अंदर किसी रेनोन काउंसलर को बुलाया गया था टू अप्राइज द स्टूडेंट्स अबाउट देयर करियर. तो काउंसलिंग सेशन, ये आपके जो है आपके आपसे रिलेटेड. देन next is there can be an exhibition, Diwali Mela. Your school may have मतलब कि organized a blood donation camp. Your school might have arranged for any book distribution. ठीक है. Then celebrating the days. स्कूल में अलग अलग दिन होते हैं. पहले तो हमने इवेंट सेलिब्रेट किया, डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, लाइक अर्थ डे, इंडिपेंडेंस डे, that can be celebrated. Then there might be something like TED Talk, TED Talk, week. What is week? हफ्ता. Like आपके स्कूल के अंदर ट्रैफिक वीक सेलिब्रेट हुआ, आपके स्कूल के अंदर इंग्लिश लिटरेरी वीक सेलिब्रेट हुआ. तो इन सब के अंदर क्या है, ऑल आर सेलिब्रेशंस, राइट. इन सम यू मे बी हैविंग द चीफ गेस्ट, जैसे हम लोगों के एनुअल डे हो गया, या कोई स्पेसिफिक डेज हो गया, कोई कोई वो हो गया, उसका नाम क्या, कंपटीशन हो गया. तो वी वुड डेफिनेटली बी हैविंग समवन एज अ प्रेसिडेंट, समवन एज द वन चेयर पर्सन. बट अगर आपके लिटरेरी वीक है तो उसमें क्या करोगे आप, और पेपर में आया हुआ है, लिटरेरी वीक का मतलब हो जाता आप एक हफ्ता योर स्कूल इज फोकसिंग ऑन दैट सब्जेक्ट, जिससे रिलेटेड आपके कॉम्पिटिशन हो सकते हैं, आपके यहाँ पर डिबेट हो सकते हैं, पोस्टर मेकिंग हो सकता है, बुक कीपिंग मतलब कि जो आपके बुक मार्क्स होते हैं उनके कॉम्पिटिशन हो सकते हैं. सो देयर माइट बी डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स अंडर वन वीक. एक हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें, जैसे छोटे बच्चों को हम लोग जो है वी टेक देम फॉर द सिंपल पेंटिंग, पोस्टर्स, या फिर आपके स्लोगन मेकिंग. बड़े बच्चों के लिए हो सकता है कि हम लोग जो है किसी बुक का रिव्यू करने के लिए बोलते हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं. सो देयर माइट बी डिफरेंट एक्टिविटीज अंडर वन इवेंट. तो पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको देखना व्हाट इज द क्वेश्चन ऑल अबाउट. लाइक ये तो क्वेश्चन जो था इसके अंदर यही था, योर स्कूल हैड ऑर्गेनाइज्ड अ चौपाल जिसके अंदर 20 स्पीकर्स हैड प्रेजेंटेड ऑन द वेलनेस प्रोग्राम. तो व्हाट हैपेंड, चौपाल हुआ. व्हेन इट हैपेंड, स्कूल मैगजीन में आप 4-5 दिन का आगे पीछे लिख, आगे का पीछे का लिख सकते हो. आई रिपीट, स्कूल मैगजीन में आप एक हफ्ते तक का लिख सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कल लिखा और आज प्रिंट हो गया. हम लोग अपने आर्टिकल्स को भेजते हैं, दैट गेट्स प्रिंटेड एज पर द स्केड्यूल.
तो हो सकता है कि आपने आज भेजा वो 15 दिन बाद हो, तो वो आप एक हफ्ते तक का लिख सकते हो। लाइक यू कैन राइट, आज का डेट मैंने डाला 24, यू कुड हैव रिटन फॉर 17th ऑल्सो। देन वेयर इट टुक प्लेस, कभी कभी स्कूल के प्रोग्राम्स बाहर भी होते हैं, दैट इज योर क्रिएटिविटी। अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं दिया हुआ है कि वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी, आप उसको लिख सकते हो। द नेक्स्ट इज आपका हाउ इट वॉज। तो नॉर्मली कोई भी अगर डेज होते हैं, फंक्शंस होते हैं, अगर कोई मतलब कि उसके अंदर स्पेसिफिक गेस्ट आता है, तो हम उसको वेलकम करते हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉमन फ्रेज, द चीफ गेस्ट वॉज गिवन अ फ्लोरल वेलकम, बस दैट अ स्टैंडर्ड फ्रेज है, वो आप यूज कर सकते हो। देन उसके बाद यू कैन जस्ट 3 या 4 चीजें ले लो, नॉट मोर। अपने दिमाग में जॉट डाउन कर लो, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उस वक्त में 3 या 4 चीजें ले लो, क्या क्या हुआ होगा, रैंडमली सोचो क्या क्या हो सकता है, एंड जस्ट राइट इट इन द पास्ट टेंस। Report is written in the past tense. The content is always written in the past tense. And if the function was there, if the event was there, वो खत्म भी हुआ होगा, how it ended. हमारे स्पोर्ट्स डे वगैरह जो है वो नेशनल एंथम के साथ खत्म होते हैं, वेर एज एनुअल डे वगैरह शांति पाठ या फिर वोट ऑफ थैंक्स से होते हैं। तो यू कैन जस्ट स्टैंडर्डाइज करके आप एक ही चीज को याद करके रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें यही, अगर आपके क्वेश्चन के क्यूज में दिया है द प्रोग्राम एंडेड विद वोट ऑफ थैंक्स नेशनल, तो आपको ऐड करना, और एल्स यू कैन जस्ट यूज इट वोट ऑफ थैंक्स। तो कुछ चीजें तो आपकी स्टैंडर्ड रहती हैं, कुछ चीजों को आपने सिर्फ उसमें इन्वेंट कर, दैट इज योर स्कूल न्यूज़लेटर और मैगजीन से रिलेटेड रिपोर्ट्स। And normally we have these kinds of reports only, which I have discussed right now. Means anything which have been done. Like there was one report in the question, मतलब कि there was one कि आपके स्कूल में कोई फेस्ट मतलब डे सेलिब्रेट हुआ था, जिसमें the students had taken out a rally in the nearby areas, उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में। तो नाउ इफ यू हैव टेकन अ रैली, व्हाट यू वुड हैव डन, थोड़ा दिमाग लगाओ, यू वुड हैव टेकन अ प्ले कार्ड अलोंग विद यू, आप लोग स्कूल में तो करते ही हो, मतलब क्लीनलीनेस ड्राइव है या फिर कुछ है, तो अपने आसपास के, अगर आप इफ यू हैव गॉन फॉर अ स्ट्रॉल, अगर आप एक उसमें गए हो रैली लिया, तो यू मस्ट बी टेकिंग दैट स्लोगन्स विद यू, आपके हाथों में स्लोगन्स होंगे, आपके हाथ में प्ले कार्ड्स होंगे, तो बस उसको ऐड कर। Therefore, in a nutshell, if I want to tell you, in brief, if I want to tell you, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, you need to do it, बस दिमाग में एक चीज रखो, व्हाट व्हेन वेयर हु हाउ, ये 5 चीजें आपकी WH फैमिली की याद रहेंगी। फिर उसके क्वेश्चंस को राइट इट इन द पास्ट टेंस। दिस इज हाउ अ गुड रिपोर्ट राइटिंग इज रिटन। तो दिस वाज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ मैगजीन। We would discuss one more question for the magazine. Then we would step towards the newspaper report writing, because newspaper report writing is bit different. It's bit different. The format is different. Sometimes questions जो आते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं. Like in the school magazine, we don't normally use any tragedy or anything. Mishaps वगैरह को हम नहीं करते हैं. It relates to only the events which are there in the school. Whereas न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपका सिर्फ न्यूज़पेपर, उसके अंदर सारी सब कुछ होगा. किसी ने सुसाइड किया वो भी होगा, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो भी होगा, कोई इवेंट हुआ है वो भी होगा, प्राइम मिनिस्टर ने किसी चीज को इनॉग्रेट किया है वो भी होगा. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. And most of the time in the school, sorry, in the newspaper, the tragedy or mishaps come. और उस वक्त में थोड़ा सा हमें लगता है, because how can we know कि मिसहैप में क्या क्या हुआ हो. थोड़ा सा स्टैंडर्ड रखो कि कोई भी चीज में होता है तो व्हाट कुड हैव बीन देयर. पहले 4 तो वही चीज है, व्हाट हैपेंड, व्हेन इट हैपेंड, वेयर इट हैपेंड. हाउ में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है, और एंड को थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है, which we would definitely be doing in our sessions. हम लोग करेंगे. तो न्यूज़पेपर वाला थोड़ा सा हटके आएगा.
नाउ इफ यू हैव सीन, मैंने सब कुछ पास्ट टेंस में लिखा है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राई टू यूज अ पैसिव वॉइस। एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको और अच्छा मिलेगा देखने के लिए ये सब चीजें। वन ग्राउंड रूल आप सबके लिए एक ग्राउंड रूल है। टुडे इट इज August 21. Your exams, that is your boards, will be somewhere in Feb. If you want to score good in report writing, if you want that, yes, ये मेरा है domain, start reading proper newspaper. I'm not saying a physical newspaper. You can download it on your laptops or on your mobiles, like Times of India, anything which is a relevant one. और उनमें से आप देखो, वैसे तो जो हमारे फिजिकल न्यूज़पेपर होते हैं ना, उनमें बहुत अच्छा होता है। उनमें वो हेडलाइंस दिए होते हैं, वही हमें यहाँ लिखना होता है। उनमें वो लिखा होता है फॉर्मेट, दैट इज द प्लेस लिखा होता है, व्हाट हैपन लिखा होता है। अगर आप उसको 5 बार 6 बार अगर आप पढ़ोगे ना, आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखनी अपने आप ही आ जाए। यू कैन फ्रेम अ वेरी गुड रिपोर्ट राइटिंग योरसेल्फ। So, as a matter of learning, you can definitely resort to newspapers that would definitely help you out. But proper newspaper, जिसमें आपके हेडलाइन दिया हुआ है और उसको नीचे एलॉबरेट किया, और आप वो करोगे ना, तो रिपोर्ट राइटिंग आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। तो दिस इज द फर्स्ट सेशन फॉर व्हाट वी कॉल एज रिपोर्ट राइटिंग।